Good morning, students. We are studying chapter Cell, the unit of life. And in this chapter, in our previous class, we have studied that there are two types of cells, that is eukaryotic cell and the prokaryotic cells. Now, what is the main difference between the prokaryotic and eukaryotic cells? Pro means primitive, as we discussed in our previous class, that pro means primitive and karyo means nucleus. Means in prokaryotic cells, nucleus is primitive, means it is not bounded by any membrane, so the genetic material is freely floating into the cell. Whereas if we talk about the eukaryotic cells, they have a well-defined nucleus, means nucleus is surrounded by the nuclear membrane. Genetic material, that is chromosomes and DNA genes, are present inside that envelope. So in eukaryotic cells, nucleus is well developed and cells have well defined organelles with their own membranes. Whereas if we talk about the prokaryotic cells, तो वहाँ पर जो membranes हैं that is not also well clearly developed of the organelles में भी जो clearly demarcation नहीं होगी और जो न्यूक्लियस है वो भी demarcated नहीं होगा, differentiated नहीं होगा. Now we have studied about the basic structure of prokaryotic in our previous class, and today the topic of ribosomes and inclusion bodies of the प्रोकैरियोट्स इज़ लेफ्ट. यानी कि हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी थी, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है और जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे. राइबोसोम्स क्या है? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. जो सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दैट मे बी कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So ribosomes are attached with the plasma membrane of the cell. And if we talk about the size is nearly about 15 nanometer by 20 nanometer. यानी कि length and breadth दे रखी है, which is 15 nanometer to 20 mm in size. And if we talk about the subunits of ribosomes के पास 2 subunits होती हैं. Let us draw that. This is the first unit and this is the second unit. These two subunits are joined with each other. So in prokaryotes, the ribosome is of 50s and 30s type. यानी यहाँ पर जो units होंगी वो कितनी होंगी? 50s and 30s units होंगी. और जब हम together in units की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 70s. आप यहाँ पर जो है what is S? S is Swedberg. This Swedberg name is for the honor of the person who studied about this ribosome. जिसने राइबोसोम के बारे में स्टडी किया, उस पर्सन को, उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए राइबोसोम्स की यूनिट को हमने क्या कह दिया? 50s and 30s. और वो भी कौन से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं. सो द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स जो हैं डी आर ऑफ 70s टाइप. और अगर उनकी हम सेपरेट यूनिट्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 50s एंड 30s. यानी 2 सब यूनिट्स होगी. एक 1 यूनिट इज़ बिगर इन साइज एंड दैट इज़ 50s. द अदर यूनिट इज़ स्मॉलर इन साइज, दैट इज़ 30s. और जब ये टुगेदर इकट्ठे कलेक्टिवली प्रेजेंट हो जाती हैं तो क्योंकि इनका कुछ एरिया ओवरलैप हो जाता है तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएंगे? वो 70s. यानी इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप्स consisting of 2 subunits. One is of 50s type and the other one is of 30s type. Now what is the function of these ribosomes? They help in protein synthesis. Now some of the ribosomes may attach to a single mRNA. देखिए RNA कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. तो राइबोसोम्स जो हैं, अब इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए जो कि हमारा 12th का सिलेबस है, राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए, जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड के अगर टाइप्स की हम बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. mRNA means messenger RNA,
rRNA means ribosomal RNA and tRNA means transfer RNA. We will study about all these three types of RNA in 12th standard. What we have to study here, that ribosomes sometimes may remain attached to a single mRNA. वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं मैसेंजर RNA के साथ में, और वहाँ पर फिर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एंड दैट चेन लाइक स्ट्रक्चर in which ribosomes are attached to the mRNA, that is called as polyribosomes or polysomes. Poly means many, ribosomes means many ribosomes are joined together with किसके साथ जुड़े हुए हैं, mRNA के साथ, then that is called as polyribosomes. Now ribosomes जो हैं, यहाँ जो polyribosome के जो सिंगल जो ribosomes हैं उनका फंक्शन क्या है, they help in translation. किसकी ट्रांसलेशन करेंगे, जब मैसेंजर आरएनए किसकी सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहा है. देखिए, इन आर बॉडी ऑल्सो सम ऑफ द प्रोटीन्स वी टेक एक्सटर्नली एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी. सो हु विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ दोज प्रोटीन्स, वहाँ पर आरएनए हेल्प करता है, और आरएनए में जो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, वो क्या करेगा, इनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेट करेगा. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, दैट इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. और जो है इसके अलावा कई बार जो राइबोसोम्स हैं वो चेन बना देते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पोलीराइबोसोम्स. नाउ इंक्लूजन बॉडीज़, वी आर स्टडिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो कई बार क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है. सो यानी कि यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं, व्हाट दे विल डू इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे विल फॉर्म द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरिंग ऑफ रिज़र्व मटेरियल. यानी सेल के पास जो भी रिज़र्व मटेरियल है उसको स्टोर करने का काम. अब वो कहाँ स्टोर होगा, साइटोप्लाज्म में. व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिज़र्व मटेरियल स्टोर होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़. इंक्लूजन मीन्स इनसाइड द बॉडी, और बॉडी किसकी है, प्रोकैरियोटिक सेल की. सो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं. व्हाट दे डू, दे रिजर्व द मटेरियल. They do not have any membrane bound system, and that's why these inclusion bodies are present freely in the cytoplasm. अब क्या स्टोर करेंगी, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. तो इन सब को स्टोरेज करने का काम ये जो ग्रेन्यूल्स कर रहे हैं, चाहे वो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, चाहे वो सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं. ये क्या हैं, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज़. रिजर्व मटेरियल को ये स्टोर कर रही हैं. एंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. देन इन पर्पल एंड ग्रीन photosynthetic bacteria also these gas vacuoles are present. All these are inclusion bodies. So till now we have studied about the prokaryotic cells. Now as we know there are two types of organisms, prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. So the cells are also of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. We have studied about the prokaryotic cells in detail. So now we will study about the eukaryotic cell. Eukaryotic cell is present in all the protists, plant, animals and fungi. Means we can say मोनेरा को छोड़ करके there are 5 kingdoms, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. मोनेरा जो है उनकी सेल दैट इज़ मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप, एंड then protista, fungi, plantae and animalia, all these are included in eukaryotic type. So what is the difference in eukaryotic cells? Eukaryotic cells के साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी. कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे अपने अपने मेम्ब्रेन के साथ में, और वो जो मेम्ब्रेन है वो फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर देंगे. एज वी आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. और यूकैरियोटिक सेल में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनसाइड द सेल
Nucleus is present, that is bounded by membrane. Golgi apparatus, they also have their membranes. Then if we talk about vacuole, वहाँ पर भी membrane है. Mitochondria, it is also bounded by membrane. यानी हर एक ऑर्गेनल के पास अपनी membrane है, यानी एक डिफरेंट जो हैं वो क्या बन रहे हैं, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं. एंड दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स को एडवांस्ड बना देती है. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. इसके अलावा जो है यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो है लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स मींस कि कुछ सेल्स जो हैं उनके पास हो सकता है कोई मूवमेंट के लिए कोई स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या उनकी जो मेम्ब्रेन है वही सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प कर रही है. And genetic material of the eukaryotic cells is present inside the chromosome. Chromosomes are present inside the nucleus. Then eukaryotic cells में if we talk about plant cells and animal cells, तो यहाँ पर जो plant cells और animal cells हैं they are also different. किस तरह डिफरेंट हैं? प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स बिकॉज इन प्लांट्स कलर्ड बॉडीज़ आर देयर, कि फ्रूट्स और जो लीव्स हैं या जो स्टेम है इट मे बी ऑफ डिफरेंट कलर. सो कलर्ड बॉडी और प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. देन इन प्लांट सेल्स लार्ज vacuoles आर प्रेजेंट, whereas in animal cells vacuoles are very small in size or they will remain absent, और जो plastids हैं they are totally absent in animal cells. Then what animal cells have other than this? Animal cells have centrioles, और सेंट्रियोल जो हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज सेंट्रियोल्स? दीज सेंट्रियोल्स हेल्प इन द डिवीजन ऑफ सेल्स. जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो सेंट्रियोल्स जो हैं सेल को डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है दैट प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स, प्लांट सेल्स हैव लार्ज vacuoles, whereas animal cells do not have plastids, they have centrioles and their vacuoles are small in size or they are absent. So these are the 2 points of difference. This is the diagram of plant cell and then this is the diagram of animal cell. If we study about the labeling, then we will start from rough endoplasmic reticulum. These are the organelles. Organelles में अगर हम बात करें प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर 3 जो हैं मेन पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनल में. सबसे पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ सेमी परमिएबल, वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल. देन वेरियस organelles are present in the cytoplasm. Now what is that cytoplasm? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. एज यू आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो ऑल दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर जो है इट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. हेयर दिस सारा जो ये ग्रीन पोर्शन है इट इज़ द साइटोप्लाज्म. एंड नाउ दिस साइटोप्लाज्म has different organelles like nucleus, Golgi apparatus, then vacuoles, then microtubules, then smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, lysosomes. All these are cell organelles. Then as it is a plant cell, so it has chloroplast because it has to do photosynthesis, and cell wall is also present because it is a plant cell. Plant cell के पास एक speciality और होती है कि it has cell wall, whereas animal cells do not have cell wall. Then this is the diagram of animal cell. यहाँ हम क्या देख पाएंगे कि cell wall absent होगी, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे. सो दिस जो हमने जो बेसिक डिफरेंस पढ़ा इसके बारे में एनिमल सेल के बारे में. एंड ऑल दीज आर द ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. Now we will study in detail about all these organelles. First one is cell membrane, which is also called as plasma membrane, and it is semi-permeable because it allows selected substances to move in and out of the cell. जो substances useful होंगे उनको cell membrane अंदर आने देती है, and which are not useful or which should be removed out of the cell, they will move out through cell membrane. इस cell membrane से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अंदर आएंगी, जो यूज़फुल नहीं है वो बाहर चली जाएंगी.
अब सेल जो कि वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर होती है, वी आर नॉट एबल टू सी विद आर नेक्ड आइज। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई इन नियर अबाउट इन 1950s, तब जो है वी केम टू नो और वी गॉट मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशंस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, और तभी हम जो है किसके बारे में पढ़ पाए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एंड सेल मेम्ब्रेन में भी स्पेशली वी स्टडीड अबाउट RBCs, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। और साइंटिस्ट जो हैं जब उन्होंने RBCs को स्टडी किया, दे वर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट इज़ मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, यानी बाई लेयर स्ट्रक्चर है लिपिड्स का। अब लिपिड्स जो हैं वो अरेंज हैं 2 लेयर्स में। किस तरह अरेंज होंगे कि जो लिपिड है उसके 2 एंड्स हैं, एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड को हम हाइड्रोफोबिक टेल भी बोल सकते हैं, यानी नॉन पोलर वो होता है जो वाटर को लाइक नहीं करता, जिसे हम हाइड्रोफोबिक टेल भी बोल सकते हैं। लिपिड जो हैं वो 2 लेयर्स में प्रेजेंट हैं, जिनमें उनका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड प्रेजेंट रहेगा, एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, इनर पार्ट में प्रेजेंट रहेगी। इससे क्या होगा, जो नॉन पोलर टेल है हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्विस इन्वायरमेंट। तो अब क्या होगा, नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक, वाटर उसे पसंद नहीं है, तो वो एक्विस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, इनर पार्ट में प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोफोबिक है, इट डज़ नॉट लाइक वाटर, वाटर लाइक नहीं करती, इसलिए कहाँ होगा, हाइड्रोफोबिक एंड इनर पार्ट में प्रेजेंट रहेगा। नाउ अगर हम बात करें कि कौन से टाइप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सो दीज आर ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स टाइप। अगर हम बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड्स के अलावा दे हैव प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब मेनली इसमें क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट है विच आर बाइलेयर्ड, उसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो जो उनका जो रेशियो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की सेल है। हो सकता है किसी सेल में प्रोटीन मोर हो एंड लिपिड्स लेस हों। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, the proportion of that lipids and proteins may vary. If we take the example of human blood cells, RBCs, red blood cells, जिन्हें हम erythrocytes भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, that the amount or the proportion of the protein is 52%, whereas that of lipids is 40%. Now प्रोटीन्स जो हैं उनको हम डिपेंड ऑन द केस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितनी ईजीली हम इस मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इन प्रोटीन्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होंगे, जो कि आउटर सरफेस पेरीफेरी पर ही लाई कर रहे होंगे, और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होंगे, जो इनसाइड जो हैं डीपली इनसाइड प्रेजेंट रहेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन प्रोटीन्स को हमने क्या कहा, पेरिफेरल प्रोटीन्स। वेयर दोज विच आर एम्बेडेड इनसाइड, जिनको जो कि उसका इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। नाउ जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड यू कैन सी हेयर ऑल्सो इन द डायग्राम कि आपको जो बीड्स हैं, यू आर एबल टू सी द बीड्स ऑन द अपर साइड लोअर साइड ऑल्सो, यानी कि ये जो बीड्स हैं ये क्या हैं, लिपिड्स हैं, और क्योंकि 2 लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं, सो इट इज़ लेबल्ड एज लिपिड बाइलेयर। देन शुगर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। So this is the structure of the plasma membrane, bilayered lipids, then proteins and sugars are embedded inside these lipids. Now this model was as the electron microscope discovery took place, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगी 1950s के अंदर, एंड वी केम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेटर ऑन जो है एक मॉडल प्रपोज किया गया जिसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन।
और इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं उनका फ्लूइड लाइक नेचर है, और उस फ्लूइड लाइक नेचर के कारण, अब फ्लूइड हैं तो फ्लेक्सिबल होंगे, मूवमेंट इजीली होगा, और उस फ्लूइड लाइक नेचर के कारण ही जो कि लिपिड्स का है, देयर इज़ लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, कि जो लिपिड्स का जो बाइलेयर है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज़ मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और इसीलिए हम जो है उसकी हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, सेमी परमेएबल है, किसके कारण, क्योंकि जो उसके पास लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं जिसमें से लिपिड्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल जो हैं इन स्ट्रक्चर हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होने के कारण ही जो सेल मेम्ब्रेन है, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी फंक्शन हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लूइड टाइप नेचर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now what is the function? As it is semi permeable or selectively permeable, it allows the movement of the substances inside and outside. Two types of transport or movement takes place, passive transport and active transport. Now what is passive transport? जब molecules move कर जाएंगे एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द सिंपल डिफ्यूजन, वहाँ कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपली हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जब चीज़ें फ्लो कर जाती हैं विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. Then water also moves through this plasma membrane by the process of osmosis. Then that is also from region of high concentration to low concentration. But there are some of the substances which are present inside the cell or outside the cell, जो कि क्या होते हैं उसके पोलर मोलिक्यूल्स या पोलर एंड से पास नहीं हो सकते, तो फिर उसके लिए क्या होगा, इन्हें कोई ऐसे प्रोटीन चाहिए जो उन मॉलिक्यूल्स को कैरी करें. ये बिल्कुल वैसे ही है जस्ट लाइक अ बोट इन अ पोंड, कि हमें पोंड के दूसरे किनारे पर जाना है, हमें स्विमिंग नहीं आती है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, बोट की हेल्प लेंगे. इन द सेम वे अगर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो लिपिड में से इजीली पास नहीं हो सकते, पोलर एंड से इजीली पास नहीं हो सकते, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बोट, एक नाव की, यानी कि वहाँ पर उनको जो है एक कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, और कैरी करने का वर्क जो है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है. सो व्हाट द प्रोटीन विल डू, प्रोटीन उन मॉलिक्यूल्स को पिक करेगा और फिर उन्हें जो है मेम्ब्रेन से पार करवा देगा. सो दिस इज़ नोन एज, बिकॉज हेयर सम ऑफ द प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, कुछ जो है इनको एनर्जी की भी ज़रूरत हो रही है. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ हेयर वन एग्जाम्पल इज़ रिटन, Na+K+ pump. When we will study the unit physiology of animals, then we will study about the role of these ions, जो सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है, ये किस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं जिससे जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं. So this is about your today's class. You go through this topic and learn the things.